देखो जी, ये है विंटेज रिसॉर्ट। बहुत मस्त लोकेशन है, एकदम पास में ही है वहाँ पे। इसके पीछे से समंदर है। इस ये कॉटेजेस हैं, बेसिकली इट्स अ रिसॉर्ट विथ कॉटेज। सी, अपना कॉटेज लो, मगर इसका एक ही लोचा है कि $100 इसका चार्ज है पर नाइट। तो मन तो कर रहा है ले लो यार, $100 लाइफ है अपना, जियो। इसमें स्विमिंग पूल भी है। ये यहाँ पे मस्त पूल है, अभी दिख नहीं रहा होगा। ये बैठने का एरिया है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ अपना कॉटेज है, आराम से रिलैक्स हो। यहीं पे गाड़ियाँ हैं, ये ऑफिसेज वगैरह हैं। सो लेट मी स्टिल गो इन ऑफिस एंड चेक। ये देखो, इसमें मस्त एकदम फर्नीचर है, पेटियो जैसा है। बैठो, बालकनी है, पेड़ पौधे हैं मस्त। ये क्या मस्त है यार। ये है इसका नाम, सी शेल विलेज रिसोर्ट होटल। ये लोगों ने चालाकी किया है, और चालाकी ये है कि होटल का रेट डाला है 79। तो मैंने कहा यार अच्छा है, ले लो इवन 70। फिर उसमें लोग टैक्स लगाएंगे, वो हो जाएगा $10, और फिर $20 क्लीनिंग फीस। तो सब कुछ मिला के $105 पर नाइट। तो अगर मुझे 5 रातें रुकना है तो मेरे तो गए $500 यहीं, राइट। इसलिए नॉट वेरी गुड। $36 में जहाँ पे मैं रुका हूँ, इट इज़ वे मच बेटर डील। But the experience this place has, the location this place has, this is like still amazing. वहाँ 36 देने की जगह अगर यहाँ 99 भी दो, the experience is totally worth it. So would I stay here for at least one night? That is what I am debating myself. Because I am going to go for camping for sure. That is one night I'll do that. And this hotel is also good. Let's see. This is Holiday Inn, but it is going to be expensive. So this hotel tonight turns out to be $129 plus tax. Not a good deal. Man, look at that. They have free breakfast, free lobby, free lot of things. So right now I am trying to do hotel hunting so that today is what? It's just Monday, right? And I have to stay here till next Saturday or Sunday, probably 5 more nights. So my budget is roughly $2,050 to be honest, for 5 nights. $50 per night. Let's see. Otherwise the place where I am living, it's fine. Like, it's not that in terms of distance. It's just that once I am here, and if I would like to take rest when I am doing cycling, when I am enjoying these things around, I can't, because my hotel is there. And I also have to work couple of days. So once I am working, and if I have to travel, it is half an hour of distance. So coming here and going back takes some time. That's why I want to avoid that and pay maybe $20 more and stay somewhere here. Somewhere here. See, these places are so much fun. I can just go for a walk and I can enjoy the vibe. I can just go on a bike ride, enjoy the vibe if I am here. So for now it's already 10:18. I have to go back to my hotel first, and then I'll take rest, because I do not want to overdo things tonight. Tomorrow when I'll wake up a little bit early, I'll see how things goes. I have entire day off to figure out. I'll go to the camping beach tomorrow. I'll take a shower there and then figure out what is the deal with the camping. Based on that, I can book a resort or something somewhere and finish my 2 days of working, take Friday off. So Friday night I'll do camping, Friday and Saturday. So I have to figure out the rest 2 days where I have to stay. Right now no rush, because tomorrow I don't need internet at all. After that I may need internet. So I have to figure out a kind of nice hotel in range of
for 2 days I can pay 140ish. People have boats in their houses. This is this fellow's house with light and car and boat. This is pure luxury. How do they manage it? Do they really have this much money, or it's all plastic money? I have no idea, but this is a life which I would also like to live, provided once I have all my loans and other things taken care of, which is pretty much been taken care of. But I earn a lot of money, but it's very hard for me to like open the arms and spend with full open arms. If there would have been any hotel which is like $20 a night, I might have ended up in there instead of paying $36 whatever I'm paying now. That is so silly, but that's the truth. तो ये फेरी में ये जो जगह है ये तो 1 माइल है वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं. बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अब जैसे वेट करना पड़ेगा, तो आपका 10 मिनट में अगर नंबर आ गया सो इट्स नॉट बैड. गूगल ने यहाँ का फेरी का टाइम बताया 35 मिनट्स, विच आई डोंट थिंक इट्स दैट मच. तो अगर फेरी में आधा घंटा नहीं लग रहा है, अगर 15 मिनट टोटल टू एंड फ्रो है, देन इट इज़ गुड इनफ. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी यहाँ टाइम हो रहा है 10:22. तो मैं बीच पे से निकला था 10:25 पकड़ लो. तो 15 मिनट में अगर मैं पहुंच गया तो मैं होटल कंटिन्यू कर लूँगा. फिर इतनी भी रईसी नहीं है, आई कैन बियर विद इट. बट अदरवाइज जो बेस्ट वैल्यू इन होटल है, दैट आई रियली लाइक्ड. उसका लोकेशन एंड एवरीथिंग, एंड प्राइसिंग वाइज ये अगर 36 है तो वो 70 है, डबल है टेक्निकली. बट ऐसे कॉस्ट वाइज देखें तो इतना भी ज़्यादा नहीं है. आई कैन लिव विद दैट. वहाँ रहने से क्या है कि बीच बीच में मैं एंजॉय कर पाऊँगा. और इस मोटल में रहने से ये है कि यहाँ पे आ जाओ, ऑफिस का काम निपटाओ, जैसे ही ख़त्म हो गया फेरी पकड़ के फिर कॉर्पस क्रिस्टी आ जाओ, और यहाँ फिर सारा दिन धूम मचा के एंजॉय करो टेंशन फ्री. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच. प्रॉज एंड कॉन्स हैं, देखते हैं. ये शायद एक एम्बुलेंस है. इसके अंदर देखो, ये कुछ तो भी चल रहा है, मैप जैसा चल रहा है. टूर गाइड है क्या है भगवान जाने. ये गाड़ी है एक अजीब सी एक्सप्रेस. हाँ, फेरी का ये प्रॉब्लम अब जाके समझ आया कि फेरी में आपकी आएगी फेरी, उससे गाड़ियाँ उतरेंगे, आपके पूरे गाड़ी रखाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाएगी, फिर तो ये पूरी कहानी होने में टाइम तो लगता है. मान के चलो आधा घंटा इस चीज़ में लग जाता है. एक बार वहाँ से उतरे तो उस पार जाने के बाद हार्डली 5 मिनट में मेरा वहाँ होटल आ जाता है. और इस तरफ जो उतरे फेरी के, तो यहाँ से भी हार्डली 5 मिनट में बीच आ जाता है. तो टोटल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 10 ही मिनट है. बट बिकॉज ऑफ द फेरी का वेट, फेरी का भी ट्रैवल टाइम इतना नहीं है. टोटल ऐड करोगे आपका जब फेरी चलता है तो 2 मिनट्स है. बट लाइन अप रहोगे, टाइम वेस्ट हुए जा रहा है. जैसे अभी मुझे यहाँ 4 मिनट हो गए हैं लाइन अप हुए. फिर गाड़ी आपकी रखा भी जाएगी तो फुल पैक होने में टाइम लगेगा, वहाँ उतरने में, तो उसके वजह से थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है. तो फाइनली अब हमारी गाड़ी भी फेरी में आ ही गई है. तो भाई साहब ने बोला यहाँ आ जाओ. ये मैडम सुंदरी हैं, ये बोल रही हैं यहाँ खड़ी करने के लिए. इस तरह से ये लोग फेरी में खड़ी करवा रहे हैं गाड़ी. और ये सारे गाड़ियाँ खड़े, मेरे पीछे भी आ गए हैं गाड़ियाँ. जो है फेरी चलना शुरू हो गई है. ऑलरेडी हम लोग समंदर में हैं. देखो जी, दूसरा छोरा आ गया है. ये यहाँ से आ गए. भाई गूगल ने जो टाइम बोला था आधा घंटा, वही लग रहा है. अभी 10:46 हो, 10:55 पे होटल, तो आधा घंटा है. चलो बाय. कल कौन सा होटल करते हैं देखते हैं. अभी फेरी इज़ फन.